केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट, इसको लोग टफ नहीं बोलते, इसको इरिटेटिंग बोलते हैं। आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, समझ आ भी जाए, बट रिवाइज करने आओ तो फॉर्मूलाज, रेशियोज, टर्म्स सब मिक्स हो जाता है। इस वीडियो में मैं चैप्टर को NCERT के कंफ्यूजिंग फ्लो में नहीं, मेमोरी सेक्शंस में तोड़ के एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न्स पिक करे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम टू डिकोडिंग NCERT, जहाँ हम चैप्टर्स को 5 टाइम्स फास्टर लर्न करते हैं और 10 टाइम्स फास्टर रिवाइज। चलो शुरू करते हैं मूल कॉन्सेप्ट द राइट वे। पहला सेक्शन है लॉज। फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. It was proposed by Lavoisier and proved by Landolt. It says that mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction. Mass कभी create या destroy नहीं किया जा सकता है. इसका exception है nuclear reaction and second exception, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट absorb या evolve होता है तब mass and energy interconvertible हो जाता है. When large amount of heat is absorbed or evolved, mass and energy are interconvertible, following the equation E equals to mc square. Second law, law of definite proportions. It was given by Joseph Proust. It says that a given compound contains exactly the same proportion of elements by weight, no matter the source. Exception, isotopes. Third law, laws of multiple proportion. It was given by Dalton. It says that if two elements, here H2 and O2, forms more than one compound, here H2O in the first reaction and H2O2 in the second reaction, the masses of one element, here O, that combines with a fixed mass of the other element H2 are in the ratios of small whole numbers. पहले रिएक्शन में O का मास 16 है, सेकेंड रिएक्शन में O का मास 32 है. 16:32 is 1:2, that is a ratio of small whole number. Fourth law, Gay-Lussac's law of gaseous volumes. It says that when gases react at constant temperature and pressure, the volumes of reactant and product gases are in simple whole number ratios. जब gases react करती है constant temperature और pressure पे, तो volumes of reactant and product gases simple whole number ratios में होते हैं. Fifth law, Avogadro's law. It says that equal volumes of gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. जब pressure और temperature same होते हैं तो equal volume of gases के equal molecules होते हैं, equal number of molecules होते हैं. Next section, theories. First theory, Dalton's atomic theory. It says, first point, matter is made up of small particles called atoms. Matter atom से बना है. Second point, atoms are indivisible and can't be created nor destroyed. Atoms को कोई destruct नहीं कर सकता है and ये कभी create या destroy नहीं किए जा सकते. Third point, atoms of same element has identical mass and properties and atoms of different elements have different mass and properties. Same element के सारे identical mass होते हैं, सारे के same property होते हैं, and different elements के different masses होते हैं और different properties होते हैं. But ये गलत था obviously. Atoms of different elements combine in simple whole number ratios to form compound. Fifth point, chemical reactions are rearrangement of atoms. Atoms are neither created nor destroyed. Chemical reactions में atoms खाली rearrange होते हैं, वो कभी create या destroy नहीं किए जा सकते. Sixth point, atoms of two elements may combine in different ratios to form different compounds. जैसा हमने पहले देखा कि H2 और O2 different ratios में combine करके पहले एक बार H2 बना रहे हैं, H2O, and second बार H2O2. Last point, atom is the smallest unit taking part in a reaction. Atom सबसे small unit होता है जो एक reaction में participate करता है. Second theory, modern atomic theory. It says that atom can be divided into protons, electrons and neutrons. Hence, it is not indestructible. So, जो डाल्टन कह रहे थे कि atom indestructible है, वो theory गलत हो जाती है. Atoms, protons, electrons और neutrons में टूट सकते हैं. Atoms of same element may not be identical. Same element के atom identical नहीं भी हो सकते हैं. For example, isotopes. एक ही एलिमेंट के अलग अलग masses होते हैं. Atoms of different element may have same properties. Different elements के भी similar properties हो सकते हैं.
जैसे पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं बट उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। फोर्थ पॉइंट, मास ऑफ एटम कैन चेंज टू एनर्जी। जैसे हाई हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब होती है तब मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल हो जाते हैं। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स न्यूक्लियर रिएक्शंस में। रेशियो इन विच एटम्स कंबाइन मे नॉट बी सिंपल। एग्जाम्पल नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। एग्जाम्पल Fe 0.950. Next section, definitions. First definition, matter, anything that has mass and occupies space. Solids, it has definite volume and definite shape. Liquids, it has definite volume but no definite shape and it takes the shape of the container. Gases, no definite shape and no definite volume. It completely occupies the space of container. Solids के डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं एंड डेफिनेट शेप होते हैं। लिक्विड्स के डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं बट उसके शेप डेफिनेट नहीं होते हैं, वो किसी भी कंटेनर में कोई भी शेप ले सकता है। गैसेस के डेफिनेट शेप भी नहीं हो सकते, वॉल्यूम भी नहीं होता, ये पूरा जितना भी कंटेनर का स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। प्योर सब्सटेंसेस, व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर सेम इन केमिकल नेचर। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब सेम केमिकल नेचर के होते हैं तो उसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सिक्स्थ डेफिनेशन, मिक्सचर, इट कंटेन्स द पार्टिकल्स ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। होमोजीनियस मिक्सचर, इस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। एलिमेंट, इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड का डेफिनेशन अर्लियर दिया हुआ था। इट सेज दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। एग्जाम्पल कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो हम लोग फिजिकली देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग को उसका कॉम्पोजिशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई रिएक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम लोग तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं जब केमिकल चेंज हो रहा होता है, ओनली व्हेन केमिकल चेंज अकर्स। मास, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। वेट, फोर्स exerted by gravity on an object. Volume, amount of space occupied. Scientific notation, it is a representation, n into 10 to the power small n, जिसमें जो कैपिटल n है वो एक डिजिट है जो 1 से 9.999 तक रहता है एंड जो स्मॉल n है वो एक इंटीजर एक्सपोनेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, डिजिट्स नोन विथ सर्टेनिटी प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। इसका रूल्स हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रिसिजन, क्लोजनेस ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स। प्रिसिजन का मतलब होता है कि जो मेजरमेंट्स हम लोग ले रहे हैं वो कितना क्लोज है, उसको हम लोग प्रिसिजन बोलते हैं। और एक्यूरेसी वो होता है जो क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू बताता है। 20th डेफिनेशन, एटॉमिक मास यूनिट, मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 of the mass of one carbon atom. Average atomic mass, mass taking into account the isotopes and the relative abundance. Gram atomic mass is the mass of 1 mole atom. Gram molecular mass is the mass of 1 mole molecules. Molar mass is the mass of 1 mole of a substance. Mole, SI unit of amount of substance. It is just a number. 1 mole equals to Na particles and Na is a constant. It is known as Avogadro number. इसका वैल्यू होता है 6.02 into 10 to the power 23 एंड पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। एंड फॉर्मूला मास इज़ फॉर आयोनिक कंपाउंड्स ओनली। इसमें हम लोग सम करते हैं एटॉमिक मासेस इन द फॉर्मूला यूनिट लाइक NaCl, इट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड। हम लोग Na का एटॉमिक मास और Cl का एटॉमिक मास लेके हम लोग फॉर्मूला मास निकालते हैं।
Empirical formula. Simplest whole number ratio of atoms of different elements in a compound. Molecular formula. Exact number of each type of atom in a molecule. Limiting reagent. Reactant consumed first, deciding the amount of product formed. Limiting reagent वो reagent होता है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है एंड वही डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है. एक्सेस reagent present in larger amount than required. ये जो एक्स्ट्रा reagents जो बच जाता है वो होता है एक्सेस reagent. POAC Principle of Atom Conservation. In chemical reaction, atoms of reactants and products are conserved, so moles of atoms are also conserved. It is just balancing का एक दूसरा नाम. Next section, formula. First formula is of vapor density. It is the relative density and it is relative to hydrogen. Since it is relative, it has no unit. It is unitless. Vapor density equals molecular mass divided by 2. Quantization of charge Q equals to plus minus Ne, जहाँ N होता है integer and E होता है electronic charge. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Third formula, percentage composition of any element in a compound. It is given by weight of that element in that compound divided by molecular weight of the whole compound into 100. Fourth formula, density of ideal gas. D equals to Pm by RT, where P is pressure, M is molar mass, R is gas constant, and T is temperature. Fifth formula, average atomic mass. Given chlorine 35 का abundance 75% है and chlorine 37 का abundance 25% है. Then हम लोग average atomic mass निकालते हैं. पहले isotope के mass into its abundance plus दूसरे isotope का mass into its abundance divided by total abundance which is 100. Sixth formula, number of moles. इसके 3 formula होते हैं. First is moles equals to given weight divided by molar mass. Second formula, given volume of gas at STP divided by 22.4 liter or 22,400 ml. But this formula is valid only for gases at STP or NTP. Third formula, given particles divided by Avogadro number. Seventh formula, empirical and molecular formula. Molecular formula is equals to empirical formula into N. Now N is equals to molecular formula mass divided by empirical formula mass. Eighth formula, concentration terms. यहाँ पर हम लोग सारे concentration terms के formulas पढ़ेंगे. इसमें फर्स्ट फार्मूला है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसमें ऊपर नीचे दोनों वॉल्यूम ही लिया जाता है, बट ऊपर में सल्यूट एंड नीचे में सल्यूशन का वॉल्यूम, और दोनों सेम यूनिट में लिया जाता है, प्रेफरेबली ml में. सो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन ml इंटू 100. सेकेंड फार्मूला, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू weight of solute in gram divided by volume of solution in ml into 100. जो डिनोमिनेटर होता है उसमें हमेशा सॉल्यूशन का लिया जाता है, वेट या वॉल्यूम जो भी है, एंड ऊपर सल्यूट का, एंड दोनों का यूनिट ऊपर नीचे दोनों सेम ही ऐसा यूनिट्स में होना चाहिए. अगर ऊपर ग्राम है तो नीचे ml होगा, ऊपर kg होगा तो नीचे लीटर होगा. परसेंटेज W/W, weight of solute in gram divided by weight of solution in gram into 100. Fourth formula, mole fraction. जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स ऊपर रखेंगे और नीचे में टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे उसको. यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है सॉल्यूशन का, जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं. अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन सल्यूट का निकाल रहे हैं तो ऊपर में मोल्स ऑफ सल्यूट होगा और नीचे में टोटल मोल्स होंगे, NB plus NA, moles of solute plus moles of solvent. एंड अगर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर में मोल्स होंगे सॉल्वेंट के और नीचे में मोल्स होंगे टोटल, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नेक्स्ट फॉर्मूला, मोलारिटी. इट इज़ गिवन बाय मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. मोलालिटी
It is given by moles of solute divided by weight of solvent in kilograms. Normality. It is given by gram equivalent divided by volume of solution in liters. Formality. It is given by weight of ionic solute divided by formula weight of ionic solute into volume in liters. Next formula. ppm, parts per million. It is given by weight of solute divided by weight of solution into 10 to the power 6 or volume of solute divided by volume of solution into 10 to the power 6. Minimum molecular mass. It is given by 100 divided by percentage into atomic weight. Next formula. Percentage yield. It is given by actual yield divided by theoretical max yield into 100. Relative density of specific gravity. It is given by density of substance divided by density of water at 4 degrees Celsius. It is 1 gram per milliliter. Hardness of water. It is given by mass of CaCO3 divided by total mass of H2O into 10 to the power 6. Equivalent weight. It is given by molar mass divided by n factor. अभी n factor हम लोग एटम, आयन, एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए निकाल सकते हैं. एटम का n फैक्टर होता है उसका वैलेंसी, आयन का n फैक्टर होता है चार्ज, एसिड का n फैक्टर होता है रिमूवेबल H+, बेस का n फैक्टर होता है रिमूवेबल OH-, सॉल्ट का n फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. 14th formula, gram equivalent. It is given by given weight divided by equivalent weight, जो हमने ऊपर निकाला. और इसका दूसरा फॉर्मूला है moles into n factor और normality into volume of solution in liters. 15th, ये हम लोग 5 फॉर्मूला है जो आपको रटना ही पड़ेगा, कभी कभी आ जाता है. It is difficult but you have to memorize it. First formula, percentage weight by volume equals percentage weight by weight into density. Second formula, molarity equals to 10 into percentage weight by weight into density divided by molar mass of solute. Third formula, molality equals 1000 molarity divided by 1000 into density minus molarity into molar mass of solute. Fourth formula, molality equals to mole fraction of solute into 1000 divided by mole fraction of solvent into molar mass of solvent. Fifth formula, strength equals weight of solute in grams and volume of solution in liters. ये आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जैसा फॉर्मूला नहीं है, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं. वेट बाय वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में ऊपर और नीचे ग्राम्स में अगर ऊपर है तो नीचे मिलीलीटर में वॉल्यूम लिया जाता है, बट स्ट्रेंथ में ऊपर ग्राम्स है और नीचे वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर्स में लिया गया है, इसलिए स्ट्रेंथ अलग होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से. नाउ कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट सेक्शन. स्टोइशियोमेट्री, इसमें 2 केसेस होते हैं. केस 1 जिसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ एक रिएक्टेंट का दिया जाता है एंड एक प्रोडक्ट का. व्हेन इन्फो अबाउट ओनली वन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज गिवन. इसमें इन्फो का मतलब होता है मोल्स, पार्टिकल्स या वॉल्यूम्स. अगर मास दिया गया है तो उसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करके फिर आगे प्रोसीड करना होगा. देन स्टेप 1, बैलेंस द इक्वेशन. आपको स्टोइशियोमेट्री अगर आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आपको इक्वेशन को हमेशा पहले बैलेंस कर लेना है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है. उसके बाद आप जो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो मेंशन किए गए हैं उसका मोल्स निकालिए. एंड उसके बाद स्टेप 3 आप बैलेंस कर चुके होंगे. इस इक्वेशन को यूज़ करना है आपको. मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए equals to moles of B divided by stoichiometric coefficient of B equals to moles of C divided by stoichiometric coefficient of C equals moles of D divided by stoichiometric coefficient of D. आपको जो दोनों का आप मोल्स निकाले हैं वो दोनों का मोल्स आपको इधर लिखना है एंड उसको डिवाइड कर देना है stoichiometric coefficient से, जो आपको बैलेंसिंग करने के बाद मिल जाएगी.
एंड ये दोनों को रिलेट करने के बाद आपको जो मिसिंग चीज़ है वो आपको मिल जाएगा। देन दूसरा केस होता है व्हेन इन्फो अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन। अगर 2 रिएक्टेंट का इन्फो गिवन है तो मोस्टली केसेस में वो लिमिटिंग रिएजेंट का केस होता है। तो आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग निकालते हैं मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। आपको पहले मोल्स निकालना है, उसको डिवाइड करना है उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, एंड जिसका भी ये वैल्यू जो है वो कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। एंड अब आपको लिमिटिंग रिएजेंट और जो प्रोडक्ट का वैल्यूज़ दिया हुआ है मोल्स का, उसको आप दोनों को रिलेट करना है प्रीवियस फार्मूला के अकॉर्डिंग। ना ये जो फार्मूलाज है ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट वो फार्मूलाज होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम टर्म आता है, जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी जिसमें मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर आता है, एंड नॉर्मैलिटी जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स आता है। तो जिसके भी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फार्मूला होता है, एंड जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है वो जिसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं आता, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो वेट में होता है, एंड पार्ट्स पर मिलियन। ऑन डाइल्यूशन 3 things happen. Moles of solute always remain same, concentration decreases and volume increases. Since moles of solute remain same, moles of solute initial equals to moles of solute final. Now moles हम लोग molarity into volume in liters को multiply करके लाते हैं, क्योंकि molarity equals to moles by volume in liter, so moles equals to molarity into volume in liters. So moles of solute initial is equals to molarity initial into volume initial equals to moles of solute final, which is equals to molarity final into volume final. Now ये जो volume final है वो वॉल्यूम इनिशियल प्लस वॉल्यूम जो ऐड किया जाता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसमें आपको इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको पूरा इक्वेशन लिखने की ज़रूरत होती है। जो भी आपको दिया हुआ है आप उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इसका मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए यूज्ड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी यूज्ड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी फॉर्म्ड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी फॉर्म्ड। जो आपको इन चारों में से कोई भी 2 चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप दोनों को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के। नाउ नेक्स्ट सेक्शन कॉमन नेम्स। सुक्रोज, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसका कॉमन नेम होता है शुगर या केन शुगर। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3, कॉमन नेम चॉक लाइमस्टोन। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉमन नेम क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसका कॉमन नेम स्लेक्ट लाइम। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, बेकिंग सोडा। कार्बोनिक डायमाइड CONH2 और CH4N2O और NH2CONH2, ये सबको हम लोग यूरिया ही बोलते हैं। कार्बोनिक डायमाइड यूरिया। कॉन्स्टेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन कॉन्स्टेंट्स। फर्स्ट कॉन्स्टेंट इज द एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट Na, 6.02 into 10 to power 23. Second constant, standard molar volume of gas. 1 मोल गैस STP पे 22.4 लीटर्स का होता है, आइडियल गैस। थर्ड कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। इसका 3 फेमस यूनिट में इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यूज़ करते हैं। पहला वैल्यू है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। सेकेंड 1.97 अप्रॉक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल।
Fourth constant, density of water, 1 gram per milliliter or 1 gram per centimeter cube. Now approximate atomic masses जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. H का 1, O का 16U, सोडियम का 23U, एल्यूमिनियम का 27U, क्लोरीन का 35.5U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U, Mg का 24U, सल्फर का 32U, कैल्शियम का 40U. मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.56 मोल पर लीटर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन का होता है एंड प्रेशर जो होता है वो 1 बार का होता है. एंड इसी पे 1 मोल आइडियल गैस 22.4 लीटर्स का होता है. नाउ इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम. प्रोटॉन का मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम एंड न्यूट्रॉन 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा हैवी होता है प्रोटॉन से भी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, बट न्यूट्रॉन ज़्यादा हैवी होता है प्रोटॉन से. चार्ज. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है. न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है. 1 atomic mass unit equals 1 divided by Avogadro number grams, which is equals to 1.67 into 10⁻⁻24 grams. Now next section, units. Base units. मास का यूनिट मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का SI यूनिट सेकेंड्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट कैंडेला, लेंथ का SI यूनिट मीटर, टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन. एंड एक टेबल था जो NCERT में दिया हुआ था. 10⁻⁻1 डेसी, D 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻15 फेम्टो, 10⁻⁻18 आटो, 10⁻⁻21 जेप्टो, 10⁻⁻24 योक्टो, 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेरा, 10⁻15 बीटा, 10⁻18 हेक्सा, 10⁻21 जेटा, 10⁻24 योटा. Now कुछ यूनिट कन्वर्जन्स. मास के यूनिट कन्वर्जन्स कॉमन. 1 kg equals to 1000 grams and 1 gram equals to 1000 mg. Length 1 meter equals to 100 centimeter and 1 centimeter equals to 10 millimeter. Volume 1 liter equals to 1000 milliliter and 1 meter cube equals to 1000 liter. Pressure 1 atm equals 1.013 into 10 to the power 5 pascal and 1 bar equals to 10 to the power 5 pascal and 1 atm equals to 1.01325 bar. इस चैप्टर में कोई इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स और टेबल्स प्रेजेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसे अटैच नहीं किया है. आगे आने वाले चैप्टर्स में ग्राफ्स और टेबल्स का भी सेक्शन रहेगा. नाउ थ्योरी में मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में लिमिटेशंस को. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 3 लिमिटेशंस हैं. पहला लिमिटेशन, could explain law of chemical combination but could not explain law of gaseous volume. law of chemical combination उन्होंने explain कर लिया था. law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, ये तीनों उन्होंने explain कर लिया था, but he could not explain law of gaseous volumes, Gay-Lussac's volume or Avogadro's volume, Avogadro's law. Second, could not explain why atoms combine to form compound. क्यों atoms combine करते हैं, क्या atoms को कौन सा फोर्स है वो जो एटम को बाइंड करता है इन अ कंपाउंड, ये सब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. थर्ड पॉइंट, could not explain why atoms of different elements are not identical. सारे एलिमेंट्स के एटम्स सेम क्यों नहीं है, डिफरेंट क्यों है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. Now with this we come to the end of the chapter.
बस मूल कॉन्सेप्ट इतना ही था। सिंपल था ना। जब इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है तो केमिस्ट्री भी इजी लगने लगती है, थोड़ी सी। नेक्स्ट चैप्टर मैं 48 आवर्स में अपलोड कर दूँगी। सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई चैप्टर मिस ना हो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट रिवाइजिंग NCERT like this, there's no going back.